Hello students, welcome back to Awasthi EduHub, the only channel where you get the solutions to all your physics related problem. In case you are new to the channel, make sure you subscribe for good informative content. In today's session, we are going to discuss velocity time graph. Velocity time graph is a very important tool in physics. This graph tells us how fast or how slow a particular body is moving, right? It also tells us about the acceleration of the body. This is the second video in continuation of the graphical analysis that we already started in the previous session. Those who are new to the channel, you can watch that video. It is there in the suggested videos, right? So let's talk about velocity time graph. Velocity time graph में we'll always be plotting time on the x-axis. मैंने आपको last class में भी बताया था that dependent and independent variables are always plotted on y and x-axis. So you will be plotting time on the x-axis and velocity on the y-axis. Now there is one simple trick through which you can analyze any graphical method. मैंने आपको बताया है distance is equal to speed into time and acceleration is equal to change in velocity upon time. हम जिस भी फिजिकल क्वांटिटी पर ऑपरेट कर रहे हैं, वी हैव टू सी कि वो फिजिकल क्वांटिटी किन फॉर्मूले से मिलके बनी है. अब यहां पर आप देख रहे हो कि वेलोसिटी और टाइम को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट डिस्प्लेसमेंट, एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट मल्टीप्लिकेशन इज फॉर एरिया. दैट मींस if you are finding the area of the velocity time graph, you will get displacement. But what we need to take care of while finding displacement, we have to take everything with sign. Whatever quantities, whatever values we are getting above the x-axis, those values have to be positive, and whatever values we are getting below the x-axis, those have to be taken negative. So we will be adding the entire area along with the sign for displacement. But in case we need to find the distance traveled through a velocity time graph, then we simply need to add all the subsequent areas. वहां पर हमें साइन का ध्यान नहीं रखना. ऐसा नहीं है कि एक्स एक्सिस के ऊपर है तो हमें प्लस रखना है, नीचे है तो माइनस रखना है. नहीं, जब हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो बिना साइन के सारे एरियाज को ऐड कर देंगे. बट जब हम डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं बेटा, तो हमें साइन देखना पड़ेगा, राइट? दूसरी चीज, वेलोसिटी अपॉन टाइम. यहां पर है डिवीजन. डिवीजन का मतलब होता है स्लोप. दैट मींस वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप से मेरे को एक्सेलरेशन मिलेगा. सो देयर आर टू फिजिकल क्वांटिटीज, टू फिजिकल टर्म्स दैट कैन बी डिटरमाइंड through a velocity time graph. The first being distance or displacement, and the second one being acceleration or retardation. Like we have already discussed in the previous class, in case the slope increases, we are talking about acceleration, और जब आपका slope decrease कर रहा है, we are talking about retardation, right? Let's decode this, let's understand this with a very basic example. आपको स्क्रीन पर एक ग्राफ दिख रहा है. दिस इज अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड वी नीड टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट थ्रू दिस ग्राफ. तो मैंने आपको अभी बताया कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो सबसे पहले फॉर्मूला चेक कर लो. डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू v इंटू टी. अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो मेरे को निकालना है एरिया. अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है बेटा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है. तो वेक्टर क्वांटिटी को मैं साइन के साथ ऐड करूंगा. तो यहां पर मुझे को तीन एरिया दिख रहे हैं. दिस इज एरिया 1, दिस इज एरिया 2 एंड दिस इज एरिया 3. ठीक है ना? लेट अस नेम देम. दिस इज A1, दिस इज A2 एंड दिस इज A3. तो सबसे पहले हम A1 निकालते हैं. A1 कैसे निकालेंगे? ये एक ट्रायंगल है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द बेस बेटा? दिस इज द वैल्यू ऑफ द बेस, 0 to 4. That means what we have to do, half into 4 into what is the height? This is the height, and the height is 5. So we are going to get 10, right? This is the value for A1. Similarly, A2 is a trapezium. ध्यान रखेंगे,
इन केस जिन बच्चों को नहीं पता है कि ट्रेपीजियम का एरिया कैसे निकालते हैं, इट्स वेरी सिंपल. द एरिया फॉर ट्रेपीजियम इज हाफ sum of parallel sides into the distance between parallel sides. तो जरा ध्यान से देखेंगे, अगर मैं A2 का वैल्यू निकाल रहा हूं तो हाफ, व्हाट आर दी पैरेलल साइड्स, आपकी पैरेलल साइड्स ये हैं, दिस इज द फर्स्ट पैरेलल साइड ये. तो व्हाट इज द वैल्यू, यहां पर 9 है, यहां पर 4 है, दैट मीन्स 9 minus 4 दैट विल बी 5. सिमिलरली व्हाट विल बी DE, यहां पर 5 है, यहां पर 8 है, तो 8 minus 5 will be 3. and what is the height is 5. so the value of A2 will be 20, right? We got the value of A2. This is M, this is M. Now let's talk about A3. again same formula, half sum of sides, 9 से 13 जा रहा है, मतलब 13 minus 9 is 4, प्लस 12 से 10 जा रहा है, यानी कि 12 minus 10 that is 2. and what is height is 5. so you will be getting 15 meter. but the question is how to find the displacement. तो बच्चों अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो मेरे को साइन के साथ एरियाज ऐड करने पड़ेंगे. तो जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं साइन के साथ एरियाज ऐड करूं तो A1 will be positive, A3 will be positive, but A2 will be negative. तो डिस्प्लेसमेंट कैसा आएगा, the value of displacement will be A1 is positive, A2 is negative, and what is A3? A3 is again positive, right? so you will be getting 5, that is 5. तो इस ग्राफ से अगर आपने डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट विल बी 5. अगर आपको इसी ग्राफ से डिस्टेंस निकालना है बेटा, तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करोगे, अब की बार आप ऐड करोगे विदाउट साइन. तो सिंपली A1 प्लस A2 प्लस A3 दैट इज 10 प्लस 20 प्लस 15, 20 30 40, दिस विल बी 45 मीटर. तो आई गेस सभी बच्चों को ये क्लियर हो गया होगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कैसे कर सकते हैं. अभी हम लोग आपके बुक के अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस भी करेंगे, देन यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन, राइट? अभी मैंने आपको जो समझाया रिगार्डिंग साइन कन्वेंशन, द सेम इज रिटन इन द नोट्स. while finding the displacement we take the areas along with their signs. ठीक है, तो below x axis नेगेटिव, above x axis पॉजिटिव, लेकिन जब डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो ऐसा कोई कंस्ट्रेंट नहीं होता है. Now let us find acceleration from the same graph. ठीक है ना बच्चों, अब सबसे पहले देखो, let us identify the areas. कौन कौन से एरिया हैं जहां पर एक्सेलरेशन हमें निकालना होगा. देखिए, एक तो ये हो गया A to B, right? There is a slope, we need to identify the slopes. दूसरा कहां है बच्चा, this B to D, again we have a slope, we have to find the area. Then you have this E to G, again you have to find the area. And then you have H to I, and you have to find the area. But the question is, what about DE and GH? What is the slope of DE and GH? बेटा, slope of DE and slope of GH is 0, right? कभी भी कोई लाइन ऐसे दिख जाए आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, तो वहां पर कोई एक्सेलरेशन नहीं है. क्यों नहीं है ये भी समझिए. देखिए, G पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है, 5, राइट? और H पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, 5. तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, तो 5 minus 5 तो 0 होगा, isn't it? सिमिलरली यहां पर भी देखिए -5 है. तो लेट्स फाइंड द एक्सेलरेशन एट डिफरेंट पार्ट्स. सबसे पहले हम एक्सेलरेशन निकालते हैं AB का. तो स्लोप मतलब tan थीटा, y बाई x, लास्ट क्लास में बताया था. व्हाट इज y? दिस इज y, 5. व्हाट इज x? दिस इज x, 3. बात समझ में आ गई? तो एक्सेलरेशन ऑफ AB इज 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट BC. BC में देखिए, व्हाट इज y? y का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस, टोटल वर्टिकल हाइट. तो स्लोप वैसे भी आप निकाल सकते हो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 से. अगर आप इसको ट्रायंगल को पूरा कर दो तो मुझे आप बताओ
B से लेके D के बीच में टाइम कहां से कहां वेरी कर रहा है, 5 to 3। तो अगर मैं एक्सेलरेशन BC निकालूं तो व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी, D पर बेटा वेलोसिटी कितनी है, D पर वेलोसिटी है -5, राइट। चेंज इन वेलोसिटी निकाल रहा हूं, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल इज B पर कितनी वेलोसिटी है, +5, एंड व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ टाइम, टाइम इज 5 - 3। तो -5 इज 10, 5 - 3 इज 2, राइट। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, इट इज -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बच्चों ध्यान से देखो, एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है, राइट। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है बॉडी रिटार्ड कर रही है। और आप अगर लास्ट क्लास देख के आए हैं तो भी आपको मालूम है, मैंने आपको समझाया है, अगर स्लोप गिर रही है तो रिटार्डेशन है, अगर स्लोप इंक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन है। अगर मेरे को एक्सेलरेशन निकालना है फ्रॉम E to G, तो what is the final velocity at G, it is 5. What is the initial velocity at E, it is -5. What is the time difference, यहां पर है 10 और यहां पर है 8, तो this will be 10 - 8, this will be 10 and this will be 2. So acceleration from E to G will be +5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एम आई वेरी क्लियर, क्लियर है बच्चों, राइट। तो ऐसे हम इस तरीके के क्वेश्चंस करते हैं। मेक श्योर आप साइन में कभी गलती नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आप E से G देखोगे तो स्लोप इंक्रीज हो रहा है, अगर स्लोप इंक्रीज हो रहा है तो बॉडी एक्सिलरेट हो रही है, क्लियर है। अगर समझ में आ रहा है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्यू स्पेशल केसेस, राइट। वैसे मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है इस स्पेशल केस का मतलब क्या है। अब जरा ध्यान से देखो, A पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी थी बेटा, 4, B पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, 4। तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज 4 - 4 डिवाइडेड बाय 5 - 0, दिस इज 0। दैट मींस अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसका मतलब एक्सेलरेशन इज 0। और अगर एक्सेलरेशन 0 है बेटा तो क्या ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यस। व्हेनेवर द एक्सेलरेशन इज 0 द मोशन इज यूनिफॉर्म, सो दिस पर्टिकुलर सीन रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एम आई वेरी क्लियर। चलो लेट्स टॉक अबाउट दीज टू केसेस, राइट। दो ग्राफ आपको दिखाई दे रहे हैं, दिस इज ग्राफ 1। ऑब्वियसली ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो मैं दो चीजें निकाल सकता हूं यहां से, आई कैन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, आई कैन फाइंड द एक्सेलरेशन। तो अगर मैं कहूं इसमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो कितना आएगा, हाफ इनटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द बेस, दिस इज बेस, दिस इज 8, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द हाइट, this is the value of height, this is 80, so this will be 320 मीटर। तो इस पर्टिकुलर ग्राफ में अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करो तो 320 मीटर आएगा। अगर एक्सेलरेशन की बात करो तो एक्सेलरेशन होता है स्लोप यानी कि y डिवाइडेड बाई x। तो y कितना है बेटा, 80, एंड व्हाट इज x, x इज 8, तो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एम आई वेरी क्लियर। चलो दूसरे ग्राफ में देखते हैं। अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो अगेन हाफ इनटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द बेस, दिस इज द वैल्यू ऑफ द बेस एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ द हाइट। तो हाफ इनटू 4 इनटू 40, दिस विल बी 80 मीटर्स। और अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो कितना आएगा, सबसे पहली चीज आपको दिख रहा है A से B आपकी स्लोप गिर रही है, इट्स अ फॉलिंग एज, इट्स अ फॉलिंग एज। तो मैं स्लोप वाले मेथड से ही करता हूं। व्हाट इज द फाइनल वैल्यू, फाइनल वैल्यू इज 0। सी t is equal to 4 पे फाइनल वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज 0। व्हाट इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन, इट इज 40, एंड व्हाट इज द टाइम डिफरेंस, दैट इज 4 - 0, तो दिस विल गिव यू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको ऑटोमेटिकली नेगेटिव साइन मिल जाएगा, और अगर नेगेटिव साइन मिल रहा है दैट मींस वहां पर रिटार्डेशन हो रहा है।
क्लियर है? सो दिस इज अनदर केस, राइट? नाउ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट, आप एक बार सोच के देखो कि क्या वेलोसिटी टाइम ग्राफ वेलोसिटी एक्सिस के पैरेलल हो सकता है? मतलब मैंने ये वेलोसिटी टाइम, ये वेलोसिटी बनाया, ये टाइम बनाया, मैं बोल रहा हूं कि मेरा ग्राफ ऐसा आ जाए। इस ग्राफ का मतलब हुआ एक ही टाइम, मान लीजिए ये 2 सेकेंड था, बॉडी की वेलोसिटी ये भी थी, ये भी थी, ये भी थी। ये तो पॉसिबल है नहीं। एक ही टाइम पर बॉडी की बहुत सारी वेलोसिटीज तो हो नहीं सकती। दैट मींस वेलोसिटी टाइम ग्राफ कभी भी वेलोसिटी एक्सिस के पैरेलल आ ही नहीं सकता। ये बात सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर देखिए t इज इक्वल टू 0 पे बॉडी की वेलोसिटी 0 नहीं है, बॉडी की वेलोसिटी ऑलरेडी है। कितनी है? 10। ओके, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। अच्छा, अब इस तरीके के क्वेश्चंस में अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़े तो कैसे निकालूंगा? यहां पर कुछ बच्चों से गलती होती है। देखिए यहां पर दो एरिया हैं, एक तो ये रहा आपका, मैं शेड कर देता हूं, ये वाला ट्रायंगल, दिस इज वन एरिया, इजंट इट? बट एक एरिया और भी है, एक एरिया है आपका, मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूं। तो जिन बच्चों को ट्रेपीजियम का निकालने में प्रॉब्लम है वो एक रेक्टेंगल निकाल लो और एक ट्रायंगल निकाल लो, तब भी आंसर आ जाएगा। वरना सबसे बेटर है ट्रेपीजियम। कौन कौन सी पैरेलल साइड्स हैं? एक तो ये है 0 से 10, और एक कौन सी साइड है बेटा? एक है आपकी ये वाली B से D, दैट इज 40। एंड व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम? दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, 5। तो यू विल गेट 50 into 5 divided by, sorry, 50 into 5 divided by 2. Am I very very clear? This is 250 divided by 2, 2 ones are 2, 2 twos are 4, and 2 fives are 10. This is how you will operate. Is that very very clear? ठीक है, राइट? ऐसे आप ये क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो। दिस इज द इजीएस्ट मेथड टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। आई गेस आपको बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, ध्यान रखिएगा, मैंने इसको 40 ले लिया है, आई हैव टेकन दिस 40। एक्चुअली अगर आप ग्राफ ध्यान से देखोगे तो दिस इज नॉट 40, ये लाइन यहां पर जा रही है, तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 35। तो अगर आप इसको यहां पर 40 की जगह 35 कर लोगे, इसको 35 कर लोगे, तो दिस विल बिकम 45, राइट? ये आप अपने ग्राफ में, अभी हम क्वेश्चंस भी करेंगे तो आप चेक कर सकते हो। एंड अगर ऐसा सीन है तो दिस विल बी लाइक 112.5। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। ध्यान रखिएगा हमेशा, जैसे यहां पर ये पॉइंट है, तो कभी भी आप जल्दी में कोई पॉइंट मिस नहीं करेंगे, राइट? जैसे हमने अभी मिस किया। क्लियर? चलो, इसी ग्राफ में अगर मेरे को एक्सेलरेशन निकालना हो तो अगेन वेरी सिंपल। एक्सेलरेशन निकालने के लिए स्लोप मेरे पास कहां पे है? दिस इज द स्लोप, this yellow line is the slope. So what will be y? This will be y, right? तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? bc divided by this line, this is od. What is bc? bc is 35 minus 10, right? That is 25. What is od? That is 5. So you will be getting 5 meter per second square. Am I very very clear? Right? Chalo, let's move on to the next part. अब की बार let us assume that we have released a body from some height. This is a very very interesting graph and you need to take very good care while solving this graph. अगर मैं किसी बॉडी को, मान लीजिए ये ग्राउंड है, राइट? और मैंने बॉडी को यहां से छोड़ा, क्या होगा? द बॉडी विल मूव डाउन। जब बॉडी नीचे जा रही है तो इसके ऊपर एक एक्सेलरेशन लग रहा है g। अगर बॉडी के ऊपर एक्सेलरेशन लग रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी विल इंक्रीज, इजंट इट? If a body is acted upon by any acceleration, the velocity of the body increases. But
बॉडी जैसे ही इस सरफेस से टकराएगी, immediately it will bounce back, and as soon as it will bounce, direction of velocity will change, right? देखिए क्लास 9th के जो बच्चे हैं उन्हें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही होती है, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस इमीडिएटली। दैट मींस जब आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहे हो तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज क्लियरली दिखना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, सो दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर सच अ मोशन। सबसे पहले देखिए दिस पार्ट रिप्रेजेंट्स द डाउनवर्ड मोशन। अब आप जरा ध्यान से देखो, यहां पर स्लोप इज इंक्रीजिंग, जस्ट ट्राई टू डिकोड दिस, द स्लोप इज इंक्रीजिंग, एंड इफ द स्लोप इज इंक्रीजिंग इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ बॉडी इज एक्सेलरेटेड। ओके, नाउ ये 100% वो पॉइंट रहा होगा जब उसने इंपैक्ट किया। दिस इज द इंस्टेंट जब वो वॉल से या ग्राउंड से टकराई, और जैसे ही बेटा वो वॉल से या ग्राउंड से टकराई, आप अपना ग्राफ ध्यान से देखो, वेलोसिटी ने डायरेक्शन चेंज कर दिया। यस, द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी चेंजेस। अब नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज करना शुरू हुई और अल्टीमेटली बॉडी की वेलोसिटी जीरो हो गई। आप ये प्रैक्टिकल सिचुएशन अज्यूम करके भी देखो, आप टॉप से एक बॉल फेंकोगे, बॉल नीचे जाएगी, ग्राउंड को हिट करेगी, और ऊपर आते आते अल्टीमेटली एट वन पॉइंट ऑफ टाइम द बॉल विल कम अंडर रेस्ट। यस, एम आई वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इट वॉज अ वेरी कॉन्सेप्चुअल पॉइंट, बहुत ज्यादा ध्यान रखना है इस पॉइंट का, राइट? चलो, विद दिस वी एंड द लेक्चर टुडे सेशन। इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स थे, वी विल बी डूइंग दोज न्यूमेरिकल्स इन द नेक्स्ट लेक्चर, जहां पर हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पढ़ेंगे। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज अ वेरी बेसिक ग्राफ, बहुत छोटा सा ग्राफ है, तो वहां पर वी विल हैव दैट टाइम टू इनकॉर्पोरेट ऑल द रिमेनिंग क्वेश्चंस। We have already solved the first 8 unsolved questions in the previous session, and the remaining questions, I guess total you have 12 questions. So we are left with we have already solved 7 questions, so we are left with say 8 9 10 11, 5 questions are left. So we will be covering those 5 questions and the remaining part in the next lecture. So guys, if you are from ICSE board and you're looking for a channel where you can get complete solution of all the problems with good content, and you're new to the channel, make sure you subscribe it. Don't forget to click the bell icon so that next time around when we are live or maybe the new lecture comes, you are properly notified. So stay healthy, stay safe, and see you very soon in the next session. Bye.